Hello, students. How are you? Hope you are doing good. Today, we are going to discuss Nelson Mandela's Long Walk to Freedom, which is the second chapter in First Flight, the English literature book in class 10th. Long Walk to Freedom is by Nelson Rolihlahla Mandela. How I tried to pronounce the middle name in native African language. You can also call it Nelson Rolihlahla Mandela. Let's start. Before we jump straight away into the main text, let's have some background study of the chapter. Nelson Mandela was a South African political leader and a philanthropist also, who he served as president of South Africa from 1994 to 1999. Okay, he was anti-apartheid revolutionary. What is this apartheid thing? Here is some idea. Apartheid is a political system that separates people according to their race. It is a political system that separates or discriminates people. जो लोगों को बिल्कुल discriminate करता है, separate करता है based on color and ethnicity. Ethnicity means it's a kind of race or we can say a family, a tribe, people, or even nation belonging to the same stock, whether it is genetic or geographic. जो कोई भी हो geographically या फिर जो एक ही जाति या एक ही ग्रुप को belong करते हो वो एक रेस के कहलाते हैं. Okay. And have you ever heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? And his African Congress. नेल्सन मंडेला स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड. तो उन्होंने एक लाइफ टाइम फाइटिंग की थी अपार्टाइड के खिलाफ, अगेंस्ट अपार्टाइड. ही हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. प्रिजन मीन्स जेल. ओके, एंड उसने 30 इयर्स स्पेंड किए थे जेल में. और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So as I told you that he served as president of South Africa from 1994 to 1999. So there were democratic elections in 1994 and Mandela became first president. वो बने first president एक नए राष्ट्र के. The new nation was South Africa. Okay, and this is an extract from his biography, this lesson in particular. तो ये उनका extract है, means a part है, a little part है, छोटा सा part है, little part है उनकी autobiography का. Autobiography is a life story of a people written by himself. तो autobiography जो होती है, जैसे we also call it आत्मकथा. It's a person's life history. एक person की life history होती है that is written by that person only. Okay, 10th May dawned bright and clear. Dawn means started. This date is very important. 10th May. ये बहुत important date है because this was the day when the oath ceremony as a president was going to happen in 1994. तो ये 1994 को oath ceremony हुई थी इस दिन. तो ये बहुत important है. नेल्सन मंडेला राइट्स, वो लिखते हैं कि जो 10th May थी that started very bright and clear. For the past few days, कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. वो कहते हैं I had been besieged by dignitaries. Besieged means surrounded or encircled. वो घिरे हुए थे, pleasantly घिरे हुए थे, happily घिरे हुए थे. और by dignitaries. Dignitary means very important people, an important and influential person. एंड तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि वो घिरे हुए थे डिग्निटरीज से, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन. और जो लगातार आ रहे थे, दे वर कमिंग रेगुलरली टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन सेरेमनी. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. सॉइल मीन्स लैंड. हेयर मिट्टी होता है, जमीन होता है. तो वो कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन है वो सबसे बड़ी गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग होने को जा रही थी in the history of South Africa, because it tells us, suggests us that before that there was not
large gatherings, not much large gatherings, and this is the largest one of international leaders. ये gathering भी international leaders की है जो पहले साउथ अफ्रीका में नहीं हुई थी. It was first ever in the history of South Africa. Inauguration means as I told you opening or startup. शुरुआत है, प्रारंभ है, उद्घाटन भी बोलते हैं उसको. तो इनॉग्रेशन सेरेमनी है 10th मई को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Ceremonies means the inauguration ceremony से मतलब है the oath ceremony that was to happen in a sandstone amphitheater formed by Union building in Pretoria. Amphitheater क्या है? ये this is an open roof building. It's a kind of large auditorium, okay, with many rows of seats rising in step. I think this picture will help you. You see the chair in fashion in in rising step. This is called an amphitheater. Okay, and it was ये कहाँ था? It was in Pretoria. Okay, and formed by Union buildings. Union buildings territory. Union buildings ने इसको बनाया था. Sandstone amphitheater. Sandstone क्या है? It's a kind of stone, colored stone, white, red or brown. ऐसा कोई stone होता है. For decades, this had been the seat of white supremacy. Decades means a decade is the time of 10 years. 10 year का एक period होता है, उसको बोलते हैं decade. दशक कहते हैं हिंदी में. तो for decades, दसियों सालों से this had been the seat of white supremacy. तो ये seat बनी हुई थी means this is center. Seat means center of white supremacy. तो white supremacy की seat बनी हुई थी. White is used for British people. ये British people के लिए use हुआ है. Supremacy क्या होता है? Supremacy means the condition of being superior to all others in authority or in power. तो अपने आप को ऊंचा समझने वाली कंडीशन होती है when we think that we are superior to everyone else and they all were inferior. तो कहते हैं कि जो ये decades से ये white supremacy का सेंटर बना हुआ था, now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये आज जो वाइट सुपरमेसी का सीट था, सेंटर था, वो आज एक दृश्य बना हुआ है रेनबो गैदरिंग का. रेनबो गैदरिंग मीन्स द पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन एंड डिफरेंट कलर्स. ओके, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं किसके लिए? इंस्टॉलेशन के लिए, इंड्यूस करने के लिए. इंडक्ट कर जो हो रहा है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हो रही है, जो इंडक्ट हो रही है उसको देखने के लिए पहुँचे हैं. ओके, और गवर्नमेंट कैसी है? इट वॉज द डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल. नॉन रेशियल मीन्स नॉन बेस्ड ऑन रेस, किसी स्पेशल रेस या कास्ट को या फिर क्रीड को, पीपल को, किसी भी केवल एक ही स्टॉक के लोगों को लेकर के नहीं चलने वाली. ओके, ऐसी गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए डिफरेंट पार्ट से लोग आए हुए हैं. इट वाज रेनबो गैदरिंग. ओके, नॉट ओनली वाइट आर हियर बट ऑफ ऑल कलर्स, पीपल ऑफ ऑल कलर्स आर हियर. ओके, ये ऑल कलर्स ऑफ पीपल क्या होते हैं? जैसे कि अफ्रीकन्स को ब्लैक बोल देते हैं, एंड वी इंडियन आर ब्राउन, एंड येलो पीपल आर फ्रॉम चाइना. ओके, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है इंडक्टिंग. वेल, और इट मे बी इनॉग्रेशन ऑल्सो. तो जो वाइट सुप्रीमेसी का सीट था वहाँ पे डिफरेंट क्रीड और कलर्स के और डिफरेंट नेशन के लोग यहाँ पर आए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On that lovely autumn day. Autumn day means it's a season of autumn, fall season. ये fall का season है, autumn का season है, पतझड़ we call it in Hindi. I was accompanied by my daughter Zenani. तो मैं अपनी daughter Zenani के साथ था. On the podium. Podium means dais. D-A-I-S. It's a lecture stand. वो देखा होगा लेक्चर देते हैं इसके पीछे खड़े होकर के. यू हैव सीन इन योर स्कूल्स इट मैनी टाइम्स. तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट टू स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो मिस्टर डी क्लर्क पहले थे जिन्होंने स्वॉर्न इन किया. स्वॉर्न इन मीन्स ही टुक द ओथ, उन्होंने शपथ ग्रहण की एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. इन सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में
Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Then came Mr. Thabo Mbeki. उन्होंने sworn in किया first deputy president के रूप में. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. कहते हैं जब मेरी बारी आई, when it was my turn, तो मैंने क्या pledge किया? What were the solemn word I spoke in my oath? वो कहते हैं कि मैं ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, एंड डेवोट माई सेल्फ, अपने आप को डेवोट कर दूंगा. डेवोट मीन्स टू डेडिकेट. ओके, लाइक तुलसीदास devoted his life in telling the story of Ram. तो वैसे ही वो कहते हैं कि I pledge to devote myself, मैं अपने आप को devote कर दूंगा, dedicate कर दूंगा अपने रिपब्लिक की वेलबींग में. रिपब्लिक मीन्स द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, RSA ऑफिशियल नाम भी है साउथ अफ्रीका का. फॉर टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, तो मैं अपने देश के और उसके पीपल, लोगों के लिए मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा, उनके वेलबींग के लिए. वेलबींग मतलब फॉर गुड ऑफ देम. ओके, उनके वेलफेयर के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट. वो कहते हैं असेंबल्ड मीन्स गैदर्ड, जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं मेहमान, गेस्ट, एंड फॉर द वॉचिंग वर्ल्ड एंड द होल वर्ल्ड वर वॉचिंग. पूरा संसार देख रहा था. वाई? बिकॉज भाई वो बोलता है कि वाइट सुप्रीमेसी की सीट पर देखो नॉन रेशियल गवर्नमेंट खड़ी हो गई. तो वो कहते हैं मैंने उनके लिए कहा. आई सेड. व्हाट ही सेड? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. वो कहते हैं आज अपनी उपस्थिति से, बाय आवर प्रेजेंस, एंड वी कॉन्फर, हम कॉन्फर करते हैं. कॉन्फर मीन्स टू गिव. ओके, और प्रदान करना. वी कैन से ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. तो ग्लोरी ऑफ होप कॉन्फर करते हैं. कॉन्फर मीन्स देना. व्हाट? ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स यश, प्राइड, गौरव, एंड होप इज नाइस और गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. आशा. आशा और आनंद और यश किसको प्रदान करते हैं, किसको कॉन्फर करते हैं? टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी अभी पैदा हुई. न्यू बॉर्न, जस्ट बॉर्न, लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. लिबर्टी स्टैंड्स फॉर फ्रीडम. ओके. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. He says कि इतने extraordinary human disaster के experience से, that lasted too long, that ended after a long time, बहुत समय तक रहा, जो human disaster था. Disaster means calamity, आपदा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी that is not common, uncommon, ऐसा अनकॉमन मानवीय आपदा. ओके, उसके अनुभव से एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न, जन्म लेनी चाहिए. मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच मतलब जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरा ह्यूमैनिटी जिस पर प्राउड कर सके, गर्व कर सके. हेयर ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर है, ये ही इज टॉकिंग अबाउट द वाइट रूल देयर. ओके, वो सोच रहा है कि जो ऑपरेशंस हुए, ऑप्रेस किया उन्होंने, शोषण किया, सप्रेस किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस एक्सटर्नल ह्यूमन डिसास्टर के अनुभव से, और वो काफ़ी लंबे समय तक रहा. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ऑलमोस्ट 300 years. तो एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी ह्यूमैनिटी प्राउड कर सके. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Sorry. वो कहते हैं कि who were outlaws criminal, a lawless person. Okay, as we know that Nelson Mandela was a revolutionary, वो एक क्रांतिकारी थे. तो that is why, यही कारण है कि वो अपने आप को outlaws कह रहे हैं. उनको वाइट गवर्नमेंट ने outlaw criminal डिक्लेयर करा हुआ था. तो कहते हैं we who were outlaws, हम जो outlaws थे, हम criminals थे, कुछ समय पहले की बात, कुछ ही समय पहले, नॉट सो लॉन्ग, ज़्यादा समय की बात नहीं है. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमको रेयर प्रिविलेज दी गई है. व्हाट इज दिस रेयर प्रिविलेज? प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट और एडवांटेज और फेवर.
दुर्लभ हमको ये प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, ठीक है, दी गई है टू बी होस्ट, कि हम होस्ट करें, मेहमान नवाजी करें, मेहमान नवाज बने, होस्ट टू नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही मातृभूमि, अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही भूमि पर हम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को होस्ट करें, वेलकम करें उनको। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace, for human dignity. And वो कहते हैं कि वो थैंक करते हैं अपने सारे डिस्टिंग्विश मीन्स इम्पोर्टेंट और डिग्निफाइड, जो उनके महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, कि वो यहाँ पर आए हैं हमारे देश के लोगों के साथ इस पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड और वो ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज़ अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि ये जो टाइम है, जो घटना उसमें हुई है, दैट इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि आखिरकार दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस ऑफ पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये कॉमन विक्ट्री है, सभी की विक्ट्री है ऑन फॉर न्याय के लिए, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ओके, डिग्निटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर एंड रेस्पेक्ट, क्लास मीन्स ग्लोरी और प्राउड, गरिमा, जो मानव की गरिमा है, बीइंग ए मैन, मानव होने के नाते, तो ये दिस इज द विक्ट्री फॉर ऑल। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वो कहते हैं कि फाइनली एट लास्ट हमने अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मीन्स राजनीतिक मुक्ति, एमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम, लिबरेशन, और रिलीज, जो पॉलिटिकल रिलीज है, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्त होना, आज़ाद होना, वो हमने अचीव कर लिया है। ही सेज वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, suffering, gender and other discrimination। वो कहते हैं कि we pledge ourselves, we promise solemnly promise to ourselves, हम स्वयं से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि we will liberate, वो लिबरेट करेंगे अपने सारे लोगों को, कहाँ से लिबरेट करेंगे, कहाँ से फ्री करेंगे, from the continuing bondage, continuing, जो अभी तक, जो बॉन्डेज, जो बंधन अभी तक जारी हैं, चल रहे हैं, politically they are free but there are certain more bondages, और भी कुछ बॉन्डेज हैं, एंड दे आर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी है, डिप्राइवेशन मीन्स व्हेन वी डिनाई समबडी राइट्स, हम किसी के राइट्स को डिनाई कर देते हैं तो उसे डिप्राइवेशन कहते हैं। यू सी हियर द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग राइटफुल बेनिफिट्स, ठीक है, उपेक्षित कर देते हैं उसको, उसके राइट्स नहीं मिलते हैं, कई लोग ऐसे हैं, तो वो उनकी बात कर रहे हैं, उसको उनको डिप्राइवेशन से फ्री करना है। सफरिंग मीन्स पीड़ा, एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स distinction when we separate people, favoritism, इसका एक और मतलब होता है डिस्टिंक्शन, भेदभाव, ओके, इससे हमको फ्री करना है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस पर, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस और ethnicity, etc. He again says, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कहते हैं कि never, he emphasized 3 times, he pronounces never, वो 3 बार प्रोनाउंस करते हैं never को, कि कभी नहीं, वो बहुत ही emphasize करते हैं इस बात को कि इस ब्यूटीफुल लैंड में कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, ये अनुभव नहीं होगा, किस चीज़ का, दैट ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन मीन्स रिप्रेशन और सप्रेशन, शोषण जिसको कहते हैं, सी हियर, ऑपरेशन मतलब शोषण, ओके, ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक का दूसरे द्वारा शोषण होगा, ये लैंड कभी ऐसा अनुभव अब नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कहता है कि सन कभी भी सेट नहीं होगा ग्लोरियस, इतने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के ऊपर। सन सेट होने का मतलब है व्हेन सन सेट्स इट इज़ द एंड ऑफ द डे, कहते हैं कि ऐसा यहाँ का सन कभी सेट नहीं होगा।
इस पर जो इस ग्लोरियस मैग्निफिसेंट ह्यूमन अचीवमेंट, मानव ने जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर प्राप्त की है, मीन्स इट विल नेवर गोइंग टू एंड, ये कभी समाप्त नहीं होने जाएगी। और वो क्या है कि दैट दे हैव एमेंसिपेटेड, they are freed now from the all political prejudice, apart जो जो भी वहाँ पर था डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, वो सभी समाप्त हो गया। और ये यही उनका अचीवमेंट है। दे हैव नाउ नॉन रेशियल गवर्नमेंट एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड ही अगेन सेज लेट फ्रीडम रेन मीन्स रूल, प्रिवेल, कि चलो फ्रीडम को प्रिवेल करने दो, फ्रीडम का राज्य हो, आज़ादी का राज्य हो, आज़ादी ही सब जगह रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका। Now this is the end of first part. Here are some questions. I would like to discuss these questions with you. So the first question is, where did the ceremonies take place? Very simple. This is a lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. Okay, this is the place where the oath ceremony took place. And the second part of question says, can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Yes, there are many. Rashtrapati Bhavan, Supreme Court building, Parliament House, and Red Fort, Lal Killa, Taj Mahal. These all are made up of this sandstone. Okay, the next question is, can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? Yeah, definitely, we can say. Because it was the day of installation of a democratic and non-racial government in South Africa. So the autumn day is a bit tricky here. Okay, you know, autumn is a season. It is also called fall. But there is other metaphorical meaning of autumn. Autumn is an age of late maturity. Okay, a period of late maturity followed by a long period of decline. बहुत लंबा पीरियड अवनति के बाद जो आता है मैच्योरिटी का, वो है। तो वो कहते भी कि इट वाज जो एक्सपीरियंस है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस, बहुत समय तक रहा, एंड आफ्टर दैट ये दिन हमको देखने को मिला। तो वी कैन से दैट दिस 10th May is an autumn day in South Africa. Okay, next question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? And what is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो पहले तो बोलते हैं an extraordinary human disaster, बिल्कुल ही असाधारण मानवीय आपदा थी, and then he said that the glorious human achievement. अब ये तो बहुत ही magnificent human achievement हो गया, तो इसका मतलब क्या है? So by mentioning an extraordinary human disaster, Mandela means the white rule over the blacks practicing apartheid. तो वो apartheid यानी कि discrimination based on color उनके ऊपर practice कर रहे थे. That was a political system apartheid का. और social और इसका मतलब भी ये है कि human disaster है, वो social injustice है जो उन्होंने black people के साथ किया. They were not given justice. They were not given equal right. Okay, and this glorious human achievement, this is the installation of end of that oppression. Okay, and the installation of the first democratic government, right? By the glorious human achievement, in the end he refers, जो end में उन्होंने refer किया glorious human achievement, it refers to, ये किसको refer करता है, किसको beckon करता है? The first democratic government in South Africa. Well, let's see the next question. Fourth one, what does Mandela thank the international leaders for? For what they thank? उनको क्यों thank करते हैं? Because वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने witness किया था that the starting of democracy in African soil. Answer says, the Mandela thanks international leaders for witnessing the dawn of democracy in South African soil. So it's a common idea for victory of peace, justice and ह्यूमन डिग्निटी. तो एक कॉमन आइडिया था और इसी को वो हैप्पीनेस को या फिर प्राउड को शेयर करने के लिए आए थे.
इसलिए वो उनको थैंक बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पहुँचे. They have given their precious time there. The fifth question: what ideals does he set for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किए? वेरी सिंपल. उन्होंने कहा कि अभी कभी यहाँ पर एक दूसरे का ऑपरेशन नहीं करेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो बात उन्होंने कही कि दैट उन्होंने खुद को ही प्लेज किया कि उन कुछ सर्टेन बॉन्डेज हैं, अभी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज हैं. वी हैव टू फ्री आवर पीपल फ्रॉम दोज बॉन्डेज विच आर ऑफ poverty, deprivation and gender and other discrimination. इनसे हम फ्री करेंगे अपने लोगों को, ये भी उन्होंने कहा. He sets up the idea of liberating his people from the various bondage of deprivation, poverty, suffering, gender and other discrimination. So इस तरह से उन्होंने एक सेटअप किया आइडियल्स की. what will they do, what would be the course of the future. Okay, so here ends the first part of the lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And in the last, I want to tell you that if you have any query, if you find anything wrong here, if you have some doubts and even suggestion, so please feel free to comment below. And in next video, I will come with the second part of this lesson. Thank you.